Coming to this chapter 4, I'm sort of quite excited. मैं बहुत ही उत्साहित हूँ इस चौथे अध्याय के बारे में अध्ययन करने के लिए. Yeah, brothers and sisters, being a Christian for almost 46 years, this message of justification by faith and the gift of righteousness, I can say I've experienced it only in the some years gone by. ये जो धार्मिकता जो है, जो हमें विश्वास के द्वारा उपलब्ध होता है, ये मैंने प्रभु को 44 साल से जाना है, लेकिन तो लेकिन ये जो वचन है, ये मुझे ये जो पूरी तरह मुझे अभी समझ में आया है. So, thing that is, when we know the truth, the Bible says the truth sets us free. So I've got a feeling of that liberation just by knowing the truth. जैसे वचन में कहा गया है कि जो सत्य है वो हमें जो है आजाद कर देता है. इस वचन में जो सत्य है, इस वचन ने मुझे भी आजाद कर दिया है. So we are going to look at chapter 4 verses 1 to 13. हम चौथा अध्याय का पहला वचन से 13 वचन तक देखेंगे. Verse 1 onwards. So after I share for around 30 minutes, then there will be time for us all to share, and you can share what has encouraged you from this portion, and just share what particularly has encouraged you. Anything has encouraged you, you feel free to share. मैं पहला 30 मिनट में जो है इन वचनों पर अध्ययन करूंगा, लेकिन उसके बाद जो है हम में से कोई भी अगर हमें इस वचन से जो है उत्तेजना मिली है तो हम बांध सकते हैं. What then shall we say that Abraham, our forefather according to the flesh, has found? इसीलिए हम क्या कहें, हमारे शारीरिक पिता अब्राहम को क्या प्राप्त हुआ. Yeah, this is what the apostle Paul is saying. What has he found? What according to the flesh? What has he found? Can anybody tell what did Abraham find? प्रेरित पौलुस यहाँ कहते हैं कि अब्राहम ने अपनी शारीरिक दशा में उन्होंने क्या पाया. क्या आप में से कोई भी बता सकता है क्या कि अब्राहम ने क्या पाया, क्या प्राप्त किया? Was Sam, you want to say? What then shall we say that Abraham, our forefather according to the flesh, has found? He got Isaac by simply trusting in God. Yes, right. So, what he has found is, we'll see. Then it says, for if Abraham was justified by works, he has something to boast about, but not before God. दूसरा वचन, क्योंकि यदि अब्राहम कामों से धर्मी ठहराया जाता तो उसे घमंड करने की जगह होती, परंतु परमेश्वर के निकट नहीं. Yeah, so we are talking about a person, a very prominent person in the life, in the history of mankind, that is Abraham. हम एक ऐसी व्यक्ति के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है इस संसार में. And he did a remarkable thing, and that is found in Genesis chapter 15. और हम उत्पत्ति के 15 अध्याय में देखते हैं कि उन्होंने बहुत ही विशेष बात किया. So Abraham was around 75 years old. His wife also was around 65, and they did not have children. जो अब्राहम था वो 75 इयर्स का था और उनकी जो पत्नी थी वो भी 65 इयर्स की थी और उनको बच्चे नहीं हुए थे. So at this time God took him outside. They were living in a tent,
वो एक तंबू में रहते थे। Verse 5 onwards. और उत्पत्ति 15 का 5, 5 से we'll read 5 and 6. 5 और 6 पढ़ेंगे। And he took him outside and said, Now look toward the heavens and count the stars if you are able to count. And he said to them, So shall your descendants be. और उसने उसको बाहर ले जाके कहा, आकाश की ओर दृष्टि करके तारागण को गिन, क्या तू उनको गिन सकता है? फिर उसने उससे कहा, तेरा वंश ऐसा ही होगा। Then he believed in the Lord and he reckoned to him as righteousness. उसने यहोवा पर विश्वास किया और यहोवा ने इस बात को उसके लेख में धर्म गिना। So here was a person who was a couple who was childless, and God telling this man, come out and look in the sky, and if you can count the stars. When we try to count the stars, how many we'll be able to count to maybe 50, 60, or so thousands of stars are there. So so much will be your descendants. तो हम यहाँ एक ऐसे दंपति को देखते हैं जिनके बच्चे नहीं थे, और परमेश्वर जो है उन्हें अपने तंबू से बाहर आकर कहते हैं कि तुम अपने आंख उठाकर देखो, जो आकाश में जितने तारागण हैं उतने ही तुम्हारे जो बच्चे हैं उतने ही होंगे। And this man, when he heard this, what he did, it says in verse 6, he believed, and the Lord reckoned or considered it as, or put into his credit as righteousness. और हम यहाँ देखते हैं कि अब्राहम ने इस बात पर विश्वास किया और परमेश्वर ने ये जो बात है जो उन्होंने विश्वास किया उसको उनके खाते में एक धार्मिकता के रूप में डाला। So this was the first person who was considered righteous just by his faith. ये एक ऐसा पहला व्यक्ति है जो अपने विश्वास के कारण धार्मिक ठहराया गया। It was spoken about Abel and Enoch and Noah. They all did sacrifices. They were men of faith, but no promise was given to them. Here God is giving a promise, and there is a person just trusting and believing that promise. और हमने इससे पहले वचन में जो आबेल और हानोक हैं और नूह है जो प्रभु के साथ चलते थे, लेकिन प्रभु ने उन्हें ऐसा कोई वादा नहीं दिया था, लेकिन अब्राहम को जो है परमेश्वर ने वादा दिया और उसने उस वादे पर पूरा विश्वास किया। And this Abraham, he trusted God from that time onwards, and they were getting old, but he did not lose that trust and faith. और परमेश्वर ने उन्हें एक प्रतिज्ञा दी थी और वो और बूढ़े होते जा रहे थे, फिर भी वो पीछे नहीं हटे, अपने विश्वास से विश्वास करते रहे। वो This Abraham is so significant that it is a great example for our life. अब्राहम जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति है और हमारे लिए वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है। So when we read chapter 4, seeing about his faith, chapter 4 verse 21 to 21 and 22, और हम 20 to 22, chapter 4 verse 20 to 22, हम चौथा अध्याय का 20 से 22 वचन तक देखेंगे। Okay, I think we can read from 18 onwards. This is after he believed, he continued to trust. That is the quality of Abraham. जब उन्हें वादा मिला तो वो विश्वास करते ही रहे। In hope, against hope, he believed in order that he might become a father of many nations, according to that which had been spoken, so shall your descendants be. And without becoming weak in faith, he contemplated his own body, now as good as dead,
since he was 100 years old, and the deadness of Sarah's womb, yet with respect to the promise of God, he did not waver in unbelief, but grew strong in faith, giving glory to God, and being fully assured that what he had promised, he was also able to perform. 18 वचन से 21 वचन तक उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया, इसीलिए कि उस वचन के अनुसार कि तेरा वंश ऐसा होगा, वह बहुत सी जातियों का पिता हो। वह जो 100 वर्ष का था, अपने मरे हुए से शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई की सी दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल ना हुआ और ना अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की और निश्चय जाना कि जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की है वह उसे पूरा करने में भी समर्थ है। So this faith is a very rare and astounding faith, and he was a father of he is the father of faith. ये जो विश्वास है एकदम अनोखा सा विश्वास है और हम जानते हैं कि अब्राहम को विश्वास के पिता माना जाता है। So verse 2 says, and Abraham was justified not by works but by his faith. और दूसरे वचन में कहा है, क्योंकि यदि अब्राहम कामों से धर्मी ठहराया जाता तो उसे घमंड करने की जगह होती, परंतु परमेश्वर के निकट नहीं। Verse 3 says, and what does the scripture say? Then Abraham believed God and it was reckoned to him as righteousness. और तीसरा वचन में कहा गया है, पवित्र शास्त्र क्या कहता है, यह कि अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और यह उसके लिए धार्मिकता गिना गया। So just by his trust in God, he was fully assured that what God promised, he was able to perform. That was his faith. और उनका विश्वास ऐसा था कि उन्होंने पूरी तरह विश्वास किया कि जो भी परमेश्वर ने वादा किया है वो उसको पूरा करने के लिए समर्थ है। So because of that faith and belief in God, considered him as a righteous person. और इस प्रकार के विश्वास के कारण परमेश्वर ने उन्हें धार्मिक ठहराया। So the living God considered a man having, and that righteousness is not some righteousness of man, but the righteousness of God. That is the righteousness God assigned to Abraham. और जो जिंदा परमेश्वर है, उन्होंने एक मनुष्य को जो है अपनी जो परमेश्वर की धार्मिकता के लायक उन्हें गिना। So brothers and sisters, when we are talking about justification, what is justified means considered right. Okay, the word justified can be said considered right and declared righteous, or you can say declared innocent. तो धार्मिकता का अर्थ क्या है कि धार्मिक ठहराया जाने का अर्थ यह है कि बिना कलंक या बिना पाप के परमेश्वर के सामने सिद्ध किए जाना और बिना पाप या निष्कलंक। So brothers and sisters, this Romans chapter 3, 4 and 5 speaks about two particular truths. That is, one is the justification by faith and the righteousness of God which we receive also as a gift. और जो तीसरा, चौथा और पांचवा अध्याय है, इसमें बताया गया है कि जो विश्वास के द्वारा जो धार्मिकता हमें प्राप्त होती है और जो धार्मिकता जो परमेश्वर की धार्मिकता वो हमें कैसे उपलब्ध हो सकता है। So God should give us a revelation of this truth, and that will make us, will transform our life. और अगर हमें इस विषय में प्रकटीकरण मिलेगा तो ये जो सत्य है ये हमें आजाद कर देगा। So first of all, we receive the forgiveness of sins. पहले शुरू में हम जो है पाप का क्षमा पाते हैं। How did we receive? Because Jesus
was punished and he became a sacrifice for us. हमें ये कैसे पाप की क्षमा मिली, वो यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पर मारे गए, उसके द्वारा हमें क्षमा प्राप्त हुई। God is a just God and he has to punish sin. जो परमेश्वर है वो न्यायी है और उन्हें पाप जो है उस पर जो न्याय करना पड़ेगा। He wants to have fellowship with us, but the sin problem, he made a solution by sending his son, and Jesus lived this life as a innocent person without any sin, and he became the perfect candidate for God to put the sin of the whole world upon him. तो हम देखते हैं कि जो परमेश्वर हम जो मनुष्य के साथ संगति चाहते हैं, लेकिन पाप को हटाने के लिए उन्हें जो अपने पुत्र को इस दुनिया में उन्हें भेजना पड़ा, और वो निष्कलंक रूप में इस बिना पाप के वो दुनिया में जिए, और वो हमारे लिए एक जो बलि के रूप में वो हमारे जगह उन्होंने लिया। Unless the one who took the sin of the whole world was innocent and perfect, God would not be able to accept that sacrifice. जो बलि चढ़ाया गया, अगर वो निष्कलंक ना होता तो परमेश्वर उसे स्वीकार नहीं कर पाते। So Jesus lived his life on earth without a sin, and the sin of the whole world, our sin was placed on him, and he died. Thus, we can receive the forgiveness of our sin. तो जो यीशु मसीह हैं वो बिना पाप के इस दुनिया में जिए, और हमारा पाप जो है उन पर डाला गया, जिसके कारण वो हमारे लिए मारे गए, और इस बलिदान को परमेश्वर ने स्वीकार किया। Now, the Bible says the blood of Jesus cleanses us from all sin, and we have been forgiven of our sins, right? जो वचन है वो कहता है कि यीशु मसीह के लहू ने हमारे सारे पापों को मिटा दिया, और हम अभी बिना पाप के परमेश्वर के सामने हैं। So our slate, which was full of darkness, has become clean. जो हमारा जो हृदय है वो पूरी तरह से काले रंग का था, उसको प्रभु ने साफ किया है अपने लहू से, और उसे अभी वो एकदम सफेद हो गया है। But with only the forgiveness of sins, can we stand before a holy God? क्या इस जो बिना पाप के जब हम इस बिल्कुल साफ हो जाते हैं, तो हम इस रूप में क्या प्रभु के सामने हम खड़े हो सकते हैं? We can consider a person, one who is, like what the world considers. We are also like that. I'm just taking an example of a person who has cheated and committed adultery and harmed so many people. He has been forgiven, and now the forgiveness brings relief for us. तो हम इस दुनिया के अगर किसी व्यक्ति को देखेंगे तो वो पाप में जी रहा है, वो झूठ बोलता है, वो व्यभिचार करता है, और ऐसे एक व्यक्ति को जब परमेश्वर क्षमा करते हैं तो जो बोझ है उसके ऊपर से वो हट जाता है। क्या वो व्यक्ति परमेश्वर के सामने जाकर खड़ा हो सकता है? There is joy within us. तो इसके कारण हमारे अंदर आनंद से हम भर जाते हैं। But God is holy, and when we stand before Him, we will start wondering, how can I stand before God who's, I'm so unworthy, and that is true, but we don't have confidence. तो अगर हम परमेश्वर के सामने जाकर खड़े होंगे, तो क्योंकि परमेश्वर पवित्र है, तो हम जो है परमेश्वर के सामने कांपने लगेंगे, और हमें ऐसा महसूस होगा कि हम इसके लायक नहीं हैं। So God made such a wonderful plan for us human beings that He not only forgave our sins, but what He did is
he has said, I declare you innocent. तो परमेश्वर ने लेकिन हमारे लिए इतनी सुंदर योजना बनाई है कि उन्होंने हमारे पापों को क्षमा किया है और हमें बिना कलंक के अपने सामने खड़ा किया है. He's saying, no, I don't, you're innocent and you're righteous also. और परमेश्वर कहते हैं कि तुम्हारे ऊपर अभी कोई कलंक नहीं है, वो ही नहीं लेकिन अभी तुम धार्मिक भी हो. A wonderful verse in 2 Corinthians chapter 5 verse 21. दूसरा कुरिन्ती 5वां अध्याय और उसका 21वां वचन. It says, He made him who knew no sin to be sin on our behalf, that we might become the righteousness of God. और यहाँ कहा गया है जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं. So our sin, God put it upon Jesus, and Jesus' righteousness, God said, will be added to our account. तो हमारे जो पाप है उसे यीशु मसीह पर डाला गया और जो यीशु मसीह की जो धार्मिकता है वो हमारे खाते में डाला गया. So God not only forgave our sin, we have all our heavy burden is gone, but God said now, because God is a perfect the judge, and He has judged that sin of ours on Jesus. But now, what He says is He does something just to bring us close to Him. He says the righteousness of Christ is given to you as a gift. तो परमेश्वर ने सिर्फ हमारा पाप जो है उसे ही क्षमा नहीं किया, लेकिन क्योंकि वो एक सिद्ध न्यायाधीश हैं तो उन्होंने जो है अपने पुत्र का जो धार्मिकता है वो उन्होंने हमारे ऊपर पाप के बदले हमारे ऊपर डाल दिया. So justification means we are declared innocent and we are declared righteous. और तो धर्मी ठहराया जाने का ये मतलब है कि हम निष्कलंक हैं और हम उसके साथ साथ धार्मिक भी ठहराए जाते हैं. So now we have received the forgiveness of our sins. We have received justification. That means God doesn't at all look at us as the former sinners, but He looks at us as an innocent person. Now we start our life as a new person. तो जब परमेश्वर हमें धार्मिक ठहराते हैं वो हमारे जो पाप हैं उन्हें सब साफ कर देते हैं और उनके सामने हम बिना कलंक के हैं और जो हम परमेश्वर के सामने बिना कलंक के खड़े हो सकते हैं. So this what God has done for us about declaring us innocent and giving us the righteousness has taken away all condemnation and guilt from our life. तो जो हमारे ऊपर जो न्याय आने वाला था उसको परमेश्वर ने हमसे हटा दिया है. So we were talking about that person who's an adulterer and who's cheated and who has harmed people and all that. Now here's a man, he has trusted Jesus and he has been forgiven of all sin and he's been declared as innocent and righteous. और हमने सुना कि एक ऐसा व्यक्ति जो पापी है वो पाप में जीता है और वो व्यभिचार करता है, दूसरों को हानि लाता है अपने जीवन में. तो इस प्रकार के व्यक्ति को परमेश्वर ने अपने पापों से साफ किया और उसके पापों से उसे साफ किया और उसे धर्मी ठहराया. And then because of our faith in what Jesus has done for us, God also does another thing.
God reckons righteousness to be our portion. और क्योंकि हमने यीशु मसीह पर विश्वास किया, इसके कारण परमेश्वर जो है वो धार्मिकता वो हमारे खाते में वो डालते हैं और हम धर्मी गिने जाते हैं। Romans 5:17. रोमियो 5वां अध्याय और उसका 17वां वचन। For if by the transgression of the one death reigned through the one, much more those who receive abundance of grace and the gift of righteousness will reign in life through the one Jesus Christ. क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया, तो जो लोग अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं, वे एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करेंगे। So now, just because of our faith in what God sent His Son and what Christ has done, just because of our faith in that, just like Abraham believed God, just like Abraham believed God when he said, "You will have descendants," we have believed God on what Christ has done. Now God says, "I will reckon righteousness to you." तो जिस प्रकार अब्राहम ने सिर्फ विश्वास किया और उन्हें जो उनके वंश पर वो जो प्रभु ने वादा किया था, वो जो अनुग्रह उन पर आया, इसके कारण और वो धर्मी ठहराया गया, वैसे ही क्योंकि हमने यीशु मसीह पर विश्वास किया है, तो परमेश्वर जो है अपनी जो पुत्र की जो धार्मिकता है वो हमारे खाते में वो डालता है। And God has given us the righteousness of God within us as a gift. और जो परमेश्वर की धार्मिकता है, उस धार्मिकता को हमारे अंदर उन्होंने दिया है। There is a righteousness of the law by doing some works of the law. There is our own righteousness which we think is right. There is a type of righteousness, but this is not the righteousness which we have got as a gift. We have got the righteousness of God Himself. तो एक प्रकार की धार्मिकता है जो व्यवस्था रखने के कारण हमें मिलता है, जो हम अपने अच्छे कामों के कारण हमें वो जो धार्मिकता है वो मिलता है। वो ऐसी धार्मिकता नहीं है जिसके बारे में प्रभु कहते हैं, वो जो हमने यीशु मसीह पर विश्वास किया है, इसके कारण हमें परमेश्वर की खुद की जो धार्मिकता है वो हमें उपलब्ध हो जाता है। This righteousness of God is so powerful that it changes our life. जो ये जो धार्मिकता है उसमें इतनी शक्ति है कि वो हमारे जीवन को बदल देता है। The nature of God, the righteousness is the nature of God. That comes into our life and it starts working in our life. So that it's a very powerful righteousness. जो धार्मिकता है वो परमेश्वर का स्वभाव है, वो हमारे अंदर आ जाता है और वो इतनी शक्ति से कार्य करने लगता है हमारे अंदर कि हम बदल जाते हैं। That righteousness reveals more of the nature of God in our life. और ये ऐसी धार्मिकता है जो परमेश्वर के स्वभाव को हमारे अंदर प्रकट करता है। So God, who is light and has made us children of light, so we can have fellowship. परमेश्वर जो प्रकाश है, उन्होंने हमें जो है प्रकाश का संतान बनाया है ताकि हम उनके साथ संगति में रह सके। And He wants us to have fellowship with Him moment by moment and be confident before Him. और परमेश्वर चाहते हैं कि हम हर एक दिन परमेश्वर के साथ संगति में रहे और हम धीरज के साथ उनके सामने आ सके। So the life of a Christian, we can say, is a life of boldness and confidence before God. जो एक क्रिस्ती जीवन है वो एक धीरज भरे जीवन है, जिसके कारण हम धीरज के साथ परमेश्वर के पास आ सकते हैं। Not because of what we have been good, or we have not because of what we, but because of this God
considering us as innocent because of the righteousness which He has placed on us on account of that only. और हम धीरज से इसीलिए परमेश्वर के साथ संगति में आ सकते हैं, इसीलिए नहीं क्योंकि हमने कुछ अच्छे कार्य किए हैं, अच्छे काम किए हैं, इसीलिए क्योंकि परमेश्वर ने हमें निर्दोष ठहराया है और अपनी धार्मिकता हमारे अंदर डाल दिया है. The more we know about His righteousness, it will make us humble. It will make us not. We'll never boast about ourselves, and it will make us more compassionate, just like Jesus is compassionate. जब हम इस प्रकार के धार्मिकता को जानेंगे, तो ये धार्मिकता जो है वो हमें नम्र बनाएगा और हम दूसरों के ऊपर हम दया दिखा पाएंगे. If we have some other righteousness, it will make us critical of people, it will make us judge people, it will make us boast about ourselves. लेकिन जो दूसरी प्रकार की जो धार्मिकता है, अगर हम उसके भागी हो जाएंगे तो हम लोगों को पर दोष लगाएंगे और हम उन पर न्याय करेंगे और बहुत ही कठोर दिल के बन जाएंगे. Also, it will be an up and down life. One day up, one day down. और हमारा जीवन भी ऐसा ही ऊपर नीचे होता जाएगा. This is a life in continual fellowship with God, which God's own plan, God's wonderful plan. The more we know, the little we know, it will keep on increasing from day to day. और लेकिन ये जो परमेश्वर के साथ जो संगति का जीवन है, एक बहुत ही सुंदर जीवन है. वो दिन ब दिन वो और भी सुंदर और अच्छा होता जाएगा और प्रभु के साथ हम संगति में आगे बढ़ते जाएंगे. This righteousness makes all the laws of God written on our hearts, so God shows us His ways more and more. इस धार्मिकता के कारण तो प्रभु के जो नियम है वो सारे हमारे हृदय में लिखे जाएंगे और हमें इसका पालन कैसे करना है वो प्रभु खुद हमें सिखाएगा. So I've been able to cover only 2-3 verses today, but I wanted to particularly stress about these 3 things. One is forgiveness of sin, one is justification, and one is the gift of righteousness. और मैं सिर्फ 2-3 वचन ही बांध सका आज, लेकिन मैं ये स्पष्ट रूप से आप सबको समझाना चाहता था कि जो पाप क्षमा क्या है और जो धार्मिक ठहराया जाना क्या है और जो धार्मिकता हमें देन के रूप में मिलता है वो क्या है. There are many more wonderful things to come in this chapter and the other chapters, so we'll see it next time. और भी बहुत सारे ऐसे सुंदर सत्य हैं जो हम अगले बार हम उसका अध्ययन करेंगे. So, dear brothers and sisters, may God give us a revelation of these truths which will bless us. प्रभु हमें इस जो सत्य है इस पर हमें और प्रकटीकरण दे जिससे हम धन्य ठहराए जाएं. We see here the importance of faith. Brother Vipul? Yes, brother. हम यहाँ पर विश्वास के महत्व को देखते हैं. We saw that portion from Brother Matthew. God took him outside his tent and showed all the stars, and God said, "You will have children like this." And we can see there that Abraham believed like a small child. और हमने जैसे कि भाई मैथ्यू से वचन में सुना कि परमेश्वर ने अब्राहम को अपने तंबू से बाहर बुलाया और जब वो बाहर आता है परमेश्वर से आकाश के तारागण बताकर कहता है कि इन्हें देख क्या तू गिन सकता है, तेरा वंश भी ऐसा ही होगा. और वहां पर हम देखते हैं कि अब्राहम परमेश्वर की इस बात पर एक बच्चे के समान विश्वास करता है. And that is the thing. Believing like a child is the thing that made him God reckoned, or God imputed to him righteousness. और हम देखते हैं कि यही जो मुख्य बात है कि एक छोटे बच्चे के समान परमेश्वर की
परमेश्वर पर विश्वास करना, इसी बात ने अब्राहम को परमेश्वर के सम्मुख धर्मी ठहराया, या ऐसा कहें कि परमेश्वर ने धार्मिकता जो है वो अब्राहम पर दी। Just imagine that. Remember who is the person who is telling? The person who is telling is not a man but Almighty God. What is he telling? He is telling that when you believe in Him, you are declared righteous. और आप कल्पना करें कि यह बात कौन व्यक्ति है जो यह बात बोल रहा है। यह कोई मनुष्य नहीं परंतु सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जो कहता है कि तुम यदि मुझ पर विश्वास करो तो परमेश्वर उसे धर्मी ठहराते हैं। Now we heard that we cannot approach God without being made perfect or complete. और हमने यह भी सुना जैसे कि हम बिना सिद्धता को प्राप्त किया, बिना किसी दोष और निष्कलंक के परमेश्वर के सम्मुख नहीं आ सकते। But by faith, God makes us as righteous as Jesus. लेकिन विश्वास के द्वारा परमेश्वर हमें बिल्कुल उतना ही धर्मी ठहराते हैं जितना कि यीशु मसीह धर्मी है। If we can really believe it like a small child, we'll be extremely happy and we'll be really joyful Christians. और यदि हम परमेश्वर की इस बात पर विश्वास करते हैं तो हम ऐसे विश्वासी होंगे जिनका जीवन हर समय आनंद से भरा हुआ होता है। It made me an extremely happy person. और इस बात ने मुझे बहुत ही आनंद का व्यक्ति बना दिया। That is the word written here, blessed. Blessed means so happy that a person is to be envied. और यही हम यहाँ पर वचन में पढ़ते हैं कि धन्य है वह व्यक्ति जिसे परमेश्वर धर्मी ठहराते हैं। Just imagine that we can believe each of God's promises like that. God says everything works for your best. Imagine we can believe it as a child. Yeah, Lord, you are my Father. Everything is going to work for my best. I think we'll be extremely happy. We'll never complain. We'll never murmur. That is what I want to become. Really believing as a small child everything God says. और कल्पना करें आपकी परमेश्वर की सारी प्रतिज्ञा जो वो हमसे करते हैं, हम एक छोटे बच्चे के ना यदि हम उस पर विश्वास करते हैं, तब हमारा जैसे परमेश्वर का वह वादा प्रतिज्ञा ऐसे कहता है कि सारी बातें मिलकर हमारे लिए भलाई को उत्पन्न करेगी। यदि हम इस बात पर एक छोटे बच्चे के समान विश्वास कर लेते हैं कि परमेश्वर मेरे जीवन में जो कुछ करेंगे वह मेरे भलाई के लिए उत्पन्न होगा, तो मैं भी चाहता हूँ मेरा जीवन ऐसा बने कि वह आनंद से भरपूर हो। We heard also how we can reign in life through Jesus Christ. हमने साथ में यह भी सुना कि हम कैसे जीवन में जयवंत का जीवन जी सकते हैं यीशु मसीह के साथ में। Reign in life means reigning over Satan or the lust of the flesh, anger and anxiety and complaining nature. और जयवंत का जीवन से मेरा मतलब है कि हम हमारे जीवन में उन बातों पर जैसे कि शैतान है, हमारे जीवन में जो पाप है, शरीर की लालसाएं हैं, गुस्सा है, हमें चिंताएं करना है, इन सारी बातों के ऊपर हम जय पाना। Romans 5:17 says two things are required. One is abundance of grace, second gift of righteousness. और यहाँ पर रोमियो के अध्याय 5 के वचन 17 में हम पढ़ते कि दो बातों की हमें मुख्य रूप से आवश्यकता है, पहला अनुग्रह और दूसरा धर्म रूपी वरदान। So it's possible that we are not reigning in life because we don't really believe this truth that God has made me absolutely righteous. और यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे जीवन में हम क्यों जयवंत का जीवन नहीं जी रहे, वह जय हमारे पास नहीं है। कारण यह हो सकता है कि क्योंकि हम हृदय से परमेश्वर की इस बात पर विश्वास नहीं कर पाते कि उन्होंने मुझे धर्मी ठहरा दिया है। And also we'll be merciful to others because God was extremely merciful to us. और कि हम औरों के प्रति भी वैसे ही करुणा दिखाए, दयावान रहे जैसा परमेश्वर ने हम पर दया की है। So may God help us. परमेश्वर हम सभी की सहायता करे। What we heard is a very important truth. और जो हमने सुना वह बहुत ही महत्वपूर्ण सत्य है। This is on the foundation on which our salvation stands. और यह वह नींव है जिस पर हमारा जो उद्धार है वह स्थिर रहता है, खड़ा रहता है। You know, as we read in Genesis 15:5, Abraham was considered as righteous
before even his son Isaac was born. और यहाँ पर जैसे कि हमने उत्पत्ति के अध्याय 15 के वचन 5 में पढ़ा कि परमेश्वर जब इसहाक का जन्म भी नहीं हुआ था Not उसके even पहले Ishmael, not even Ishmael was born. और यहाँ तक कि इश्माइल ने भी जन्म नहीं लिया था, उसके पहले परमेश्वर अब्राहम को धर्मी ठहराते हैं। Because we will see further when we read, and also in James we'll see that Abraham was considered righteous because of what he did in sacrificing his son. और हम उत्पत्ति में भी पढ़ते हैं, साथ में याकूब की पुस्तक में भी पढ़ते हैं कि अब्राहम ने जो बलिदान चढ़ाने के लिए जो वह बलिदान चढ़ाने का जो कार्य किया उसके द्वारा परमेश्वर उसे धर्मी ठहराते हैं। So that we should be very clear about that. It is not at all by works; it is by faith. We are justified. तो हमें यह बात मुख्य रूप से ध्यान में रखनी है कि हम कामों के द्वारा बिल्कुल भी धर्मी ठहराए नहीं जाते, यह पूरी तरह से विश्वास पर ही आधारित है। Because in James 2:20, James says, "You foolish person, do you want evidence that faith without deeds is useless?" और हम याकूब की पत्री अध्याय 2 के वचन 20 में पढ़ते हैं, पर हे निकम्मे मनुष्य, क्या तू यह भी नहीं जानता कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है। Or the 21st verse is, "Was not our father Abraham, considered righteous for what he did when he offered his son Isaac on the altar?" और उसका 21वां वचन, जब हमारे पिता अब्राहम ने अपने पुत्र इसहाक को वेदी पर चढ़ाया तो क्या वह कर्मों से धार्मिक न ठहरा था। So let us not be confused between what he did and what he believed. तो आइए हम इस बात में संदेह ना करें कि अब्राहम ने जिस बात पर विश्वास कर अब्राहम ने जो कार्य किया। So as we heard from Brother Matthew that when we believe, God gives his righteousness because this is what is his nature. He gives his nature to us. और यही हमने भाई मैथ्यू से भी सुना कि जब हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं परमेश्वर हमें धर्मी ठहराते हैं, अर्थात परमेश्वर अपना स्वभाव जो है धार्मिकता का वह हमें देते हैं। That nature has got the potential, the power to create works, evidence for the faith. और वह जो धार्मिकता का जो स्वभाव है जो परमेश्वर हमें देते हैं उसके अंदर इतनी सामर्थ होती है कि वह उसका जो प्रमाण है, सबूत है, जो कामों के द्वारा वह दर्शा सके हमारे जीवन में। That is the faith we are talking about. The faith which can bring the righteousness of Christ, which is a nature, into our life, which can create works like exactly the way Christ did on the earth. और जब हम जैसे विश्वास हमारे अंदर परमेश्वर की धार्मिकता को लेकर आता है और वह धार्मिकता यीशु मसीह के स्वभाव को हमारे जीवन में लेकर आती है कि वह धार्मिकता कार्य करता है और हमारे कार्य यीशु मसीह के समान होते हैं। Abraham is our father. He had the same faith and ultimately ended up in sacrificing his son. और अब्राहम हमारा पिता है और उसने आखिर में अंत कैसे किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को बलिदान कर दिया। You know, in James 2:19, another faith is talking about. In James 2:19 says, "You believe that there is one God and good. Even the demons believe that and shudder." और यहाँ पर हम याकूब के 2:19 में पढ़ते हैं कि तुझे विश्वास है एक ही परमेश्वर है, तू अच्छा करता है, दुष्ट आत्मा भी विश्वास रखते और थरथराते हैं। So demons also have bigger faith than us. तो दुष्ट आत्माओं के पास हमसे भी बड़ा विश्वास है। But that did not create any nature of God in them, and which is not capable of producing the same works which Abraham had. लेकिन उनके अंदर जो विश्वास है वह उनके अंदर कार्य नहीं कर सकता था और ना ही अब्राहम ने जो कार्य किए वह कार्य उनके द्वारा कर सकता। I praise God for the apostolic teachings where this mystery God is revealing to us, by which we can be righteous, same as how Christ lived on this earth. और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ इन प्रेरितों की सेवकाइयों के लिए कि जिसके द्वारा परमेश्वर ने इस महान सत्य को हम तक पहुंचाया कि जैसे मसीह यीशु ने इस धरती पर अपना जीवन जिया वैसे हम भी उस जीवन को जी सके। Amen. आमीन। Righteous and justification, as we've been talking about. तो अभी हम बात कर रहे हैं धर्मी ठहराने के विषय में और अपने आप को सही साबित कर न्याय ठहरने के विषय में। Even Job was one of the person who was righteous in the sight of God and even just also. और यहाँ तक कि जो ये अयूब है वह भी एक ऐसा इंसान है जो कि परमेश्वर के सामने धर्मी भी था और न्यायी भी ठहरा। That's why Job was clothed with righteousness. Job was Clothed.
इस Job was जो अय्यूब clothed था, with righteous because he walked in justice of the law that God had given. तो जो अय्यूब था वह जो धर्मी ठहरना है उसके बहुत करीबी से चला और वह सारे जो नियम दिया गया था उसका वो पालन करता था और वह धर्मी ठहरने के बहुत निकट पहुंचा। I want to read a chapter from Job, chapter 29, verse 14. Sister, you can start. तो मैं अय्यूब के 29वें अध्याय के 14वें वचन में पढ़ना चाहता हूँ। Let's see what Job says. यहाँ पे हम देखेंगे कि अय्यूब क्या बोलता है। अय्यूब चैप्टर 14 वर्स No, sister, chapter 29, verse 14. मैं धर्म को पहने रहा और वह मुझे ढांके रहा, मेरा न्याय का काम मेरे लिए बागे और सुंदर पगड़ी का काम देता था। So, as it says, I put on righteousness and it clothed me. My justice walked like a robe and a turban. Imagine how he was dressed by God, means how he was blessed and how God had dressed him up. तो यहाँ पर वह कहता है कि वह धर्म को पहने रखा और उसने मुझे ढाके रहा। तो आप जरा कल्पना कीजिए कि किस रीति से परमेश्वर ने अय्यूब को पहनावा पहना के रखा था और कैसे ढाके रखा था। It was like a robe that he was covered and like a turban that was on his head. तो वह इस समान था कि वह उसने कुछ वस्त्र पहन रखे हैं और एक पगड़ी उसके सर पर थी। So the question is, are we clothed with righteous? Are we have the turban on our head? Has God given us that? तो अभी प्रश्न यह है कि क्या हम जो धार्मिकता है उससे ढके हुए हैं, उसको पहने हुए हैं, और जो पगड़ी हमें परमेश्वर ने दी है वह क्या हम पहने हुए हैं। Because as David says in Psalm chapter 5, verse 12, for you bless the righteous, O Lord, to cover him with favor as with a shield. तो जैसे कि जो भजन जो दाऊद है वह कहता है भजन संहिता के 5वें अध्याय के 12वें वचन में, क्योंकि तू धर्मी को आशीष देगा, हे यहोवा, तू उसको अपने अनुग्रह रूपी ढाल से घेरे रहेगा। See the God's promise in this. तो हमें परमेश्वर का जो वादा है उस पर विश्वास रखना है। When David says, you bless the righteous, means the blessing of God is upon us when we are in righteousness. तो दाऊद जैसे कहता है कि परमेश्वर धर्मी इंसान को आशीष देता है, तो परमेश्वर की जो आशीषें हैं वे हमारे ऊपर हैं जब हम धर्मी ठहरते हैं। Because when Job said he was clothed like a robe around him, but in this Psalm 5 verse 12 it says, you cover him with favor as with a shield, means the favor of God is upon us. तो जैसे अय्यूब भी कहता है कि परमेश्वर की धार्मिकता उसने पहन के रखी है और परमेश्वर ने उसको ढांक के रखा है, उसी प्रकार यहाँ दाऊद भी कहता है कि परमेश्वर ने उसको अपने धार्मिकता से ढक लिया है और उसको उसके अनुग्रह रूपी ढाल से उसको घेर के रखा है। ढाल से उसको घेर के रखा। The protection of the Lord is upon all the righteousness, all the righteous people. When we are righteous in God's sight, when He seals us with the righteousness and He covers us like a robe, the favor of the Lord is upon us. तो जो परमेश्वर की जो सुरक्षा है वह हमारे लिए है जब हम उसकी धार्मिकता को पहन कर रखते हैं, और परमेश्वर का जो अनुग्रह है और उसका जो दया है वह हमारे ऊपर रहती है। Because as it says in Psalm 34 verse 15, the eyes of the Lord are towards the righteous and He hears towards their cry.
Psalm 15, brother. Sister, Psalm 34, verse 15, 1 5. सॉरी, जैसे कि भजन संहिता के 34वें भजन के 15वें वचन में लिखा है, यहोवा की आंखें धर्मी पर लगी रहती हैं और उसके कान भी उसकी दुहाई की ओर लगे रहते हैं। He hears the cry of a righteous. तो इसीलिए कि परमेश्वर के जो कान है वह धर्मी लोगों के जो रोना है उनकी ओर रहता है। See how important is to be righteous in the sight of God. तो इसीलिए हमें जानना चाहिए कि इतना कितना जरूरी है कि हम परमेश्वर के सामने धर्मी ठहरे। Because if we are righteous, we are blessed. As it says in Psalm 106, verse 3, blessed are they who observe justice, who do righteous at all times. तो इसीलिए अगर हम धर्मी हैं तो हम पर परमेश्वर की दया हमेशा रहती है, जैसे कि भजन संहिता 106 के तीसरे वचन में लिखा है कि क्या ही धन्य है वे जो न्याय पर चलते और हर समय धर्म के काम करते हैं। Underline that, all times. और यह बात को आप हमेशा अपने जीवन में महत्व देकर रखें। Who observe justice, who do righteous at all times. जो हमेशा न्याय करते रहते हैं और हम धर्म के राह पर चलते हैं। Question, brother and sister. Even I do not sometimes, all times, walk in righteous or in justice. But God says we need to do it all the time. तो यहाँ पर एक मैं बोलना चाहता हूँ कि ऐसा है कि कभी-कभी मैं भी धर्म के मार्ग पर नहीं चल पाता और गिर जाता हूँ, परंतु परमेश्वर चाहता है कि हम धर्म के मार्ग पर हमेशा चलें। Amen. God bless you. तो परमेश्वर आपको आशीष दे। I'm grateful to God for the Bible study. तो मैं परमेश्वर का बहुत कृतज्ञ हूँ इस बाइबल स्टडी के लिए। I just want to share from Ephesians chapter 2 verses 8 and 9. तो मैं आपसे बांटना चाहता हूँ इफिसियों के दूसरे अध्याय के 8वें और 9वें वचन से। If you could read this verse. या ब्रदर। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है और न कर्मों के कारण, ऐसा न हो कि कोई घमंड करे। Here, this is in context to what we heard in Romans 4 as brother was sharing about the faith of Abraham. तो यह उसी बात पर आधारित है जैसे कि हमने रोमियो के 4थे अध्याय में जब हम पढ़ रहे थे और जैसे भाई बांट रहे थे अब्राहम के विश्वास के विषय में। So here there is a work that God does in us. It is an inward work of God. और यहाँ पर एक ऐसा काम है जो परमेश्वर हमारे अंदर कर रहे हैं और वह हमारे भीतर होने वाला काम है। And there is something which is an outward work. और यहाँ पर एक और काम है जो कि बाहर से दिखने वाला कार्य है। I just want to read one verse from Matthew chapter 5. और मैं आपसे एक वचन बांटना चाहता हूँ मत्ती के 5वें अध्याय में से Verse 20. उसका 20वां वचन। Sister, if you could read. क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश न कर पाओगे। And sister, if you could read Romans chapter 2 verses 13 and 14. या ब्रदर। तो only 13. रोमियो के दूसरे अध्याय का 13वां वचन मैं यहाँ पर पढ़ूंगा। क्योंकि परमेश्वर के यहाँ व्यवस्था के सुनने वाले धर्मी नहीं पर व्यवस्था पर चलने वाले धर्मी ठहराए जाएंगे। So here Paul is saying that it is not by mere listening but by obeying or doing the work, doing the law, that we will be declared right in God's sight. तो यहाँ पर प्रेरित पौलुस कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि हम वचन को सुन के ही धर्मी ठहरेंगे, परंतु हम वचन पर जब चलेंगे तब हम धर्मी ठहराए जाएंगे।
And in Matthew 5, it says, unless our righteousness exceeds the righteousness of the Pharisees. And I'm just trying to, what, as Matthew brother said, what you have experienced. So these are the things that I have experienced, and I'm sharing those things. तो और यही वहीं पर हम मत्ती के 5वें अध्याय में देखते हैं कि हमारी धार्मिकता जब तक शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो तब तक हम धर्मी नहीं ठहरते। तो यहाँ पर मैं आपको वही बात के आगे बताना चाहता हूँ जैसे भाई मैथ्यू बता रहे थे। कैन यू रिपीट द लेटर पार्ट ब्रदर? Yeah, whatever Matthew brother shared, I'm only sharing in context to what he has shared. तो जो भी भाई मैथ्यू बांट रहे थे मैं उसी संदर्भ में आगे बांट रहा हूँ। Things that from the same things but different verses which God spoke to my heart. तो बात वही है परंतु यह अलग-अलग वचनों से परमेश्वर ने मेरे हृदय में बात की। The righteousness of Pharisees and the scribes was so high, the standards were very high. तो फरीसियों और शास्त्रियों की जो धार्मिकता थी और उसके जो उनके माप थे वे इतने ज्यादा ऊंचे थे। It was all external, but that external even we cannot compare to their righteousness, their standard, because it was very very high. और वे जो external righteousness, और जो उनकी जो धार्मिकता थी वह बाहरी रूप की धार्मिकता थी और इतनी ज्यादा ऊंचे स्तर की थी कि हम भी अभी उस स्तर की जो धार्मिकता है उससे अपने आप की तुलना नहीं कर सकते। So now when Jesus came, he came down to this earth as brother explained, and that's what I just want to. So he came down and he is willing to give us his own righteousness to us. He is willing that God can accept us as we have never committed a sin only because of Jesus Christ. तो यीशु मसीह इस दुनिया पे आए और हमें परमेश्वर अभी इस रीति से अपने धारण कर सकते हैं। परमेश्वर क्या बताएं? God accepts me not the time that I have already achieved or done anything, but when I believe in Jesus and I accept his righteousness for me, that he has died for me, he is enough, his sacrifice is enough, and I believe in his righteousness and I submit to him, it is then God accepts me as righteous. तो परमेश्वर मुझे ग्रहण करता है और वह मुझे इस रीति से ग्रहण करते हैं कि जैसे मैंने कोई पाप नहीं किया है, कोई भी पाप नहीं किया है और मैं धर्मी हूँ। और वह इसीलिए हो पाता है जब मैं यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ और यह काम मेरे लिए धार्मिकता ठहरती है। So if I don't take the work of God, the working of God in me, and if I generate myself the righteousness, it will be like the righteousness of Pharisees and the scribe. तो अगर मैं परमेश्वर के किए हुए कार्य को ग्रहण नहीं करता हूँ और उसको अपने में नहीं लेता हूँ, इस पे विश्वास नहीं करता हूँ, तो मेरी जो भी धार्मिकता है वह सिर्फ बाहरी धार्मिकता रहेगी और वह उन फरीसियों और शास्त्रियों की धार्मिकता के समान रहेगी। May God help us. परमेश्वर हमारी मदद करे। I just want to share a little bit in relating to forgiveness of sins. तो मैं आप सभी से कुछ थोड़ा सा बांटना चाहता हूँ, वह बात जो कि हमारी पापों की क्षमा के विषय में है। So in the past I thought that if I confess my sins to God, I will receive forgiveness. तो पहले मैं ऐसे सोचता था कि अगर मैं मेरे पापों का अंगीकार परमेश्वर से करूंगा तो मुझे उनकी क्षमा मिलेगी। But there is no repentance in my life. परंतु मेरे जीवन में कोई पश्चाताप नहीं था। I thought if just by confessing my sins, I will be forgiven. But the truth is, whenever I only repent, then I will receive forgiveness. तो मैं सोचता था कि मैं अगर मेरे पापों को बस परमेश्वर से अंगीकार कर दूंगा तो मुझे माफी मिल जाएगी। परंतु सच यह है कि अगर मैं पश्चाताप करूंगा तब मुझे माफी मिलेगी।
So in Luke chapter 24 verse 47, तो लूक के 24 अध्याय के 47 वचन में so it says, and that repentance for forgiveness of sins should be proclaimed in his name to all the nations. वहाँ ऐसा लिखा है, और यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिराव का और पापियों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाएगा। So in one translation it says in NLT, there is forgiveness of sins for all who repent. और एक अनुवाद है जो NLT है, उसमें ऐसा लिखा है कि उन सभी लोगों के लिए जो लोग पश्चाताप करते हैं, पापों की क्षमा है। So if I can, so the truth is, whenever I repent and confess my sin, then I will receive the forgiveness of God. तो सच बात यह है कि जब भी मैं पश्चाताप करूंगा और अपने पापों का अंगीकार करूंगा, तब मुझे परमेश्वर की जो क्षमा है वह मिलेगी। So if a person thinks that if a person sins again and again and take the blood of Jesus Christ and treat the blood of Jesus Christ like a tap water, and he take sin very lightly, and whenever he commits sin and go to God without repenting and ask forgiveness, he will not receive forgiveness. He is just fooling himself. तो मान लीजिए कि एक व्यक्ति है जो कि बार बार पाप करता ही जा रहा है, और वह परमेश्वर का जो लहू है उसको ऐसे समझ रहा है जैसे कि वो एक नल से बहता हुआ पानी है, और वह उससे साफ होता जाएगा, और वह परमेश्वर से अपने पापों का अंगीकार तो कर रहा है परंतु पश्चाताप नहीं कर रहा। तो ऐसे व्यक्ति को कभी पापों की माफी नहीं मिलेगी, और वह अपने आप को ही मूर्ख बना रहा है। So that is the one thing. And second thing is in Romans chapter 4, it says in verse 7, blessed are those whose lawless deeds have been forgiven and whose sins have been covered. तो इसी प्रकार से रोमियो के 4 अध्याय के 7वें वचन में लिखा है कि धन्य है वे जिनके अधर्म क्षमा हुए और जिनके पाप ढांपे गए। Hello. क्या? तो जो यह शब्द है धन्य, यह किसी अनुवाद में इस प्रकार से बताया गया है कि बहुत खुश हैं वे लोग, खुश का इस्तेमाल किया है। So let me read like this: happy are those whose lawless deeds have been forgiven and whose sins have been covered. तो अब मैं इसको ऐसे पढ़ना चाहता हूँ कि बहुत ही खुश हैं वे जिनके अधर्म क्षमा हुए और जिनके पाप ढांपे गए। So brothers and sisters, are you happy because God has forgiven you and you are cleansed by the blood of Christ? तो भाइयों और बहनों, क्या आप खुश हैं कि परमेश्वर ने आपको क्षमा किया है और जो आपके पाप हैं उनको अपने लहू से शुद्ध किया है? So we should be thankful and rejoice in the Lord that I was forgiven and my sins are cleansed by the blood of Christ. तो हमें हमेशा खुश होना चाहिए और मन में आनंद मनाना चाहिए कि हमें हमारे पापों की माफी मिल गई है और हमारे जो पाप हैं वे शुद्ध हो गए हैं परमेश्वर के लहू से। So God sees me that I have never sinned. और परमेश्वर मुझे ऐसे देखते हैं कि मैंने कभी पाप किया ही नहीं था। So that's what the blood of Jesus Christ does. और यही काम है कि जो यीशु मसीह का लहू करता है। So thank you. That's it.